Good afternoon, everyone. Once again, my name is Arman, and I will be the moderator for this session. I have my esteemed panelists. I would first request the panelists to kindly introduce themselves so that the audience understand where all of us come from and the kind of discussion that we will have and the perspective they bring you to the room and so on. So I would request first Vijay Kanekar ji to introduce himself, give a little bit of background, आपका जो काम है, and Myself विजय कान्हेकर, मैं बेसिकली स्पेशल एजुकेटर हूँ. लास्ट 30 इयर्स डिसेबिलिटी सेक्टर में रिहैबिलिटेशन में काम करता हूँ. हमारी ऑर्गेनाइजेशन से DDRCs रन किए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर. महाराष्ट्र में 11 डिस्ट्रिक्ट्स में है और गोवा स्टेट में है. हमारा स्पेशल एक इनोवेशन है कि हमने सर्वे किया है 10 डिस्ट्रिक्ट्स में और 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में होम टू होम सर्वे, जहां पार्किंसंस के भी हमने आइडेंटिफिकेशंस किए हैं. थैंक यू. Hi everyone, my name is Mohit. I am a professor at IIT Bombay. I have spent the last 10 years of my life just working on trying to see how we can improve the gap between technology and translation. So how do we take an academic environment and actually make things translate? And the other thing is my PhD work was all focused on how humans perceive things, their haptic perception and sensory motor loop. So this is also a topic of scientific interest to me on what makes a person walk a certain way, what makes a person think, develop therapies based on that scientific knowledge. Hello everyone, I am Dr. Anjum Tadvi, a neurophysiotherapist. I am representing an NGO, a non-profit NGO called PDMDS, Parkinson's Disease and Movement Disorder Society. We are an NGO who is working for people with Parkinson's and their caregivers. It's our 25th year and I am very glad that I am here to represent, and I am here on behalf of our CEO, Dr. Maria Barreto. We are a group of people who are multidisciplinary team who provides group therapy sessions for people with Parkinson's and their caregivers through offline and online sessions. We are currently we are trying to reach out to all over India. We have more than 75 groups throughout India, offline with regional languages and online. We are trying to make more awareness about Parkinson's offline and in digital manner. And I am very glad to be here to represent our society. Thank you. Thank you so much for the introductions. So this panel is a little bit of a different and a difficult conversation, I would say. We have had fantastic discussions since morning. It is very rare to find people who identify themselves as a patient or a person with disability and then express their issues in a public forum and trying to find solution. But as I spoke in the morning, the fact that Parkinson's is identified as a disability under the Rights of Persons with Disability Act, and quite a few of here is aware of that fact, but it continues to kind of ignore and neglect the issues of people with Parkinson. And I believe the story of India in terms of disability is very unique in itself because the numbers are huge. And there's an ecosystem that has to work for anything to work, whether it is education, whether it is employment, whether it is health, or a condition like Parkinson. I mean, if you need to manage something like this, that condition, there has to be an ecosystem. And that ecosystem cannot be based out of a particular kind of city or a particular kind of society or a income group. Because if you have a disability as a condition, it does not discriminate
with you. किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. और this context of the vicious cycle of disability and poverty. If you have a disability, you become more poorer, and if you're poor, you have a disability. We heard the doctors speak in the morning how diet plays a role, how a lifestyle plays a role. So everything requires resources. I'm just trying to set the context. This panel has about 40 minutes. In half an hour, we'll finish it. So my request to the panelists would be that please be pointed in your response and honest also, please. And so, my first question to you, Dr. Anjuman, like you are yourself a therapist and you work with Parkinson's. So what kind of challenge that you see is one, and also, do you think it is an urban problem, or do you think it cuts across? What is the level of awareness about this in people you generally work with? Wow, that's a very important question. See, Parkinson's is not an urban problem. And I am going to switch my language, so there is no discrimination. Everyone understands me. मैं हिंदी में बात करती हूँ. ऐसे नहीं है कि पार्किंसंस सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ही, सिटी एरियाज़ में ही है. नहीं, हम जब बात कर रहे हैं पार्किंसंस के बारे में, एंड इट इज़ नॉट ओनली कि उसका एक्सेस जो शहरों में रहते हैं उन्हें ही मिले. पार्किंसंस ऐसी कंडीशन है. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टू थिंग्स. अवेयरनेस अबाउट पार्किंसंस, जो मैंने शुरुआत में भी कहा, ज़्यादातर लोग अभी भी नहीं जानते हैं पार्किंसंस क्या है, उसमें क्या लक्षण होते हैं और उसके वजह से क्या दिक्कतें आ सकती है. तो ये एक पहली बात है. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अवेयरनेस स्प्रेड हो एट एवरी लेवल. ये नहीं है कि सिर्फ जिनको पार्किंसंस है उनके फैमिली मेम्बर्स को ही पता होना चाहिए पार्किंसंस क्या है. इन वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी. अगर आज जैसे कि पहले टीबी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, लोगों को लगता था टीबी होने पे अब आगे कुछ नहीं होने, पर जब ग्राउंड लेवल तक जाके टीबी के बारे में जानकारी मिली, आज हमें पता है टीबी क्योर हो सकता है, उसके लिए कुछ कर सकते हैं. सिमिलरली, आई एम नॉट सेइंग पार्किंसंस को क्योर करने के पीछे पड़ जाते हैं, बट अगर आज हमारी सोसाइटी पार्किंसंस नहीं जानती है तो वो हेल्प नहीं कर पा रही है किसी को. पर कल अगर हम ये सोचते हैं कि ज़्यादातर लोगों को पार्किंसंस की जानकारी है, तो उन्हें अगर बस रास्ता क्रॉस करते वक्त कोई पेशेंट दिखता है, जिन्हें कोई पर्सन दिखता है जिन्हें फ्रीजिंग एपिसोड हो रहा है, पीपल शुड नो हाउ टू हेल्प दैट पर्सन. देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन कि अचानक क्या हो रहा है. ये एक डिसेबिलिटी, न्यूरो डिसेबिलिटी के वजह से आने वाली दिक्कत है. पर अगर पूरी हमारी सोसाइटी के लेवल पे, हर लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, उन्हें अगर पार्किंसंस की जानकारी है तो हम ज़्यादा लोगों को मदद कर पाएंगे. दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि एक्सेस, जहाँ क्या हर जगह तक हम पहुँच रहे हैं, क्या सबको पार्किंसंस के लिए कुछ ट्रीटमेंट प्लान्स मिल रहे हैं, तो ये भी एक काफ़ी चुभने वाला सवाल है. क्योंकि जैसे अवेयरनेस ही नहीं है, और इनिशियल टॉक्स में भी हमने देखा कि काफ़ी कम न्यूरोलॉजिस्ट है, स्पेशलिस्ट तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल है. तो हम ये कोशिश कर रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन. मैं ये जानबूझ के बताना चाहूँगी कि हम अलग अलग तरीके से ग्राउंड लेवल तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं. हम मल्टीपल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम टॉप डाउन अप्रोच यूज़ कर रहे हैं. अगर हमारे सीनियर ऑफिशियल्स को ही पहले अवेयर किया जाए व्हाट इज़ पार्किंसंस, एंड उनके साथ हम जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, और जब हम आशा वर्कर्स तक पहुँचे हैं अभी, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं. क्योंकि आशा वर्कर्स आर द वंस जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उन्हें अब जानकारी है उनके कम्युनिटी लेवल की. उन्हें जब हमने बताया व्हाट इज़ पार्किंसंस, एंड वी वर एबल टू रीच आउट टू पीपल विद पार्किंसंस, आइडेंटिफाई करना. अब जहाँ पे मुझे एक स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहा है, पर मुझे लोकल लेवल पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स मिल रहे हैं, उनको अगर मैं पार्किंसंस स्पॉट करने में हेल्प सिखा रही हूँ, उनको जानकारी दे रही हूँ, तो पार्किंसंस पेशेंट का डायग्नोसिस जल्दी होने में मदद हो रही है और उन्हें आगे ट्रीटमेंट मिलने में मदद हो रही है. ये एक ऑनगोइंग हमारा प्रोग्राम चल रहा है. अवेयरनेस डेफिनेटली हेल्प कर रही है, और इस तरह जब हम पेशेंट्स तक पहुंच पा रहे हैं जहां और कोई नहीं पहुंच रहा है, हम लोकल लेवल पे हमारे कम्युनिटी वर्कर्स को ट्रेन कर रहे हैं, जो उन तक मे बी स्पेशलिस्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट थेरेपी एटलीस्ट उन तक पहुँचे. हम यहाँ पे टेली रिहाब का भी उपयोग बहुत बड़े तौर पर कर रहे हैं. तो आई थिंक दिस इज़ वन वे टू गो अहेड.
एंड केयर गिवर लेड प्रोग्राम्स भी हेल्पफुल है। जैसे हमने अभी देखा मिस दिडवानी, जो उन्होंने देखा कितना प्रोएक्टिवली उन्होंने कितना पढ़ाई किया है पार्किंसंस को व्यक्ति के साथ कैसे और उनको क्या मदद कर सकते हैं। तो इसी तरह उनको अगर हम ट्रेन कर रहे हैं, उनको हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ जो गुणवत्ता होती है पीपल विद पार्किंसंस की, वो बहुत हेल्पफुल होती है। तो आई थिंक यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, अब हमें पता है सबके पास कोई ना कोई घर में एक स्मार्टफोन है, उसका उपयोग करते हुए अगर हम पहुंच पाते हैं डिजिटली, तो भी हम रूरल लेवल में, ट्राइबल लेवल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और करना चाहते हैं। और यस, चलिए, थैंक यू। कानिकर जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप तो ग्रास रूट में काम करते हैं, तो पहले आप क्या एक्सपीरियंस है इन पार्किंसन को लेकर? और यहाँ पे मुझे भी पता नहीं था, ये देखने में पता चला कि UDID देखे तो सिर्फ 7,000 लोगों के पास ऐसा ID है जिसमें पार्किंसन है बोल के डिक्लेयर कर रहे हैं। तो क्या रियलिटी है ग्राउंड में अगर देखा जाए, क्यों इतना कम नंबर है? और पार्किंसन का एक और भी कैरेक्टरिस्टिक लोग सोचते हैं, सही है या गलत पता नहीं, कि जब एक एज होगा तब होता है पार्किंसन, तो अगर एज होने पर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, क्या मतलब इसका आपका ओपिनियन है इसके बारे में? सही बोले तो ये बहुत बेसिक सवाल है कि अभी हमारे बहन ने बताया कि जागरूकता, सबसे तो अवेयरनेस का बहुत बड़ा लैक है। ये जहां हमने अभी 10 डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया है, और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने सारी जगह आशा वर्कर को ही सर्वेयर्स रखा था। मेरी अकोला के आशा वर्कर अभी पार्किंसंस क्या है उसको मुझे बताना नहीं पड़ता, ऑटिज़म क्या है बताना नहीं पड़ता, तो वो पार्किंसंस पहचान जाती है। उसके जो टूल है हमने जो यूज़ किए थे, पार्किंसंस कैसे पहचाने। सो सबसे बड़ा अगर इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट लेवल पे ये इसमें जो लैक है सर, वो कंसर्न पेरेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम हेल्थ डिपार्टमेंट कहते हैं, हमने पेरेंट डिपार्टमेंट बना दिया है एक्ट इम्प्लीमेंटेशन वाले डिपार्टमेंट को। पार्किंसंस के बारे में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ये पेरेंट डिपार्टमेंट के पास उनकी हायरार्की है, लेकिन उनका रूट पे किसी से भी कोई कंसर्न नहीं है। 2016 में जब पार्किंसंस का डेफिनेशन किया गया, तब कहीं हम NGO वाले अवेयर हो गए कि ये पार्किंसंस क्या होता है। आज परिस्थिति ऐसी है कि जैसे उन्होंने कहा कि जिनको पार्किंसंस आइडेंटिफाई हुआ है वही कुछ सीमित लेवल पे अवेयर है, और मेडिसिन थेरेपी वो भी मेट्रो सिटी और यहाँ के लेवल पे वो उनके प्रयास कर रहे हैं। क्यों? तो इट्स अ मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये। तो इसके लिए आपने कहा कि इतने कम UDID क्यों हैं। जब आप देखते हैं कि हॉस्पिटल में जाने के बाद आँख के चश्मे की मतलब ये की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, लेकिन कान से सुनाई देता है कि नहीं देता है वो नहीं देखा जाता। आफ्टर 60 हम ज़्यादा से ज़्यादा चश्मा यूज़ करते हैं, लेकिन हियरिंग एड आज भी 70+ बहुत सारे हियरिंग लॉस वाले हो गए यहाँ पे भी, लेकिन वो यूज़ करते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ी शंका है। यही परिस्थिति पार्किंसंस की है। सो UDID के लिए अगर इसको हमें, आपने जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें क्या करना चाहिए, एट अ टाइम 3 लेवल पे, हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन, रूरल हेल्थ डिपार्टमेंट, अर्बन हेल्थ डिपार्टमेंट, देन दिव्यांग कल्याण विभाग,
इन सब का समन्वय करके ड्राइव मोड पे हमें आइडेंटिफिकेशन का प्रक्रिया करना चाहिए। ये मेरा पहला वो जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब है। आपने कहा कि बहुत एक्सपेंसिव है, अभी बताया ना कि जो भी सब थेरेपी वगैरह यस एक्सपेंसिव है। यस तो महाराष्ट्र में ऐसा कोई स्कीम है जिससे ये सब कवर होता है, इंश्योरेंस है या थेरेपी के लिए है? आप तो DDRC के साथ भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो कोई ऐसा स्कीम महाराष्ट्र में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो आपका ये जो OPD वाला सर्विस हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा, ऐसा आपके जानने में कुछ है क्या? नहीं, देखिए इंश्योरेंस के बारे में आप जानते हैं कि निरामया नाम का जो इंश्योरेंस स्कीम है जो डिज़ाइन किया गया है 4 डिसेबिलिटी के लिए, जहां सेरेब्रल पाल्सी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज़म एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, उसके लिए तो निरामया है। लेकिन एक इसमें ऐसा तो नहीं डेफिनेशन, क्योंकि हमने MJPJY का जब रिव्यू लिया, जब महात्मा फुले जन आरोग्य योजना जो स्टेट की स्कीम है जिसमें पहले 1.5 लाख रुपए का कवरेज था, अभी 5 लाख का कवरेज है, उसमें कुछ मेडिसिन्स मिलने का प्रयास हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सल अबाउट पार्किंसंस कुछ अलग से पैकेज कहीं डिज़ाइन नहीं किया गया है। ज़रूर हमें सोचना चाहिए कि उसका अभी रिव्यू लास्ट 2 ईयर। मुझे आपको ये सवाल पूछा, मुझे पता है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि आप हेल्थ इंश्योरेंस में OPD कवरेज तो होता ही नहीं है, बराबर। बट दिस इज अ नीड। या टुडे सीनियर सिटीजन above the age of 70 they are covered by Ayushman Bharat. Ayushman Bharat insurance is a good thing up to 10 lakh rupees in some states. लेकिन द नीड्स ऑफ एल्डरली जो है, मान लो एक इफ़ यू लुक इट फ्रॉम अ एज पॉइंट ऑफ व्यू, यंग एज अभी आपको पार्किंसंस हो सकता है, बट दीज आर द गैप्स। एंड मेरा ये कहने का, आपकी बात सुन के मुझे जो लगा कि जो ये एब्सेंट है इन नंबर्स, पार्किंसन जितने लोग हैं, तो दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम सर्टेन प्रोटेक्शन विथ RPWD एक्ट से मिल सकता है, या जिसके लिए एडवोकेसी कर सकते हैं। सो आई कम टू यू मोहित, तो you are more of an academician, more innovation and so on, and I really think this is a beginning, how innovation and academia moving away from just paper to solution. People like Amay and many like him are trying to bring solution and innovations to disability sector. What do you think is needed, so that this does not only remain kind of a initiative at IIT Bombay only, and then it is going to smaller cities, town, and affordability and ability to choose what kind of assistive technology do you want to take for your activities of daily living and so on. सर थोड़ा फिलोसॉफिकल आंसर लगेगा, बट वही एक फिलोसफी ही स्केल होती है। तो मेरा मानना है हमें फर्स्ट एक लेवल पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा कि हम रोल क्या है इंजीनियर का सोसाइटी में। अभी आप IIT बॉम्बे में आप 19 इयर्स के स्टूडेंट को भेज सकते हैं, 4 साल तक अगर वो कैंपस की वॉल्स बाहर ही ना जाए, उसका खाना पीना अंदर है, क्लासेस अंदर है, वो ग्रेजुएट कर सकते हैं विद द बेस्ट इंजीनियरिंग डिग्री इन द कंट्री विदाउट एवर टॉकिंग टू अ पर्सन अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। तो अगर आप सिखाएंगे नहीं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना किसकी जिम्मेदारी है, तो वो इंटरनली आएगा नहीं। ये डिसेबिलिटी तक की प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ केयर की, क्लाइमेट की, हर तरह जगह की प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग एक सेट सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की दी गई है, प्रॉब्लम ढूंढने की नहीं दी गई है। दूसरी बात है, हम एक जैसे हमें आई थिंक टेक्नोलॉजी सॉल्व नहीं करती है प्रॉब्लम्स, हमें जैसे लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। उन्होंने एक कोटेशन बोली थी कि यू कांट इम्प्रूव व्हाट यू कांट मेजर। उसके साथ एक और चीज़ आती है कि वंस द मेजर बिकम्स द टारगेट, इट स्टॉप्स बीइंग अ गुड मेजर। और हम अपनी एक्सपर्टीज़ में एक बार अगर हम एक
कन्फाइंड बॉक्स में जब चले जाएं, टेक्नोलॉजी को सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरफ से देखें, तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना भूल जाते हैं। सरस्वती मैम ने एक छोटा सा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग बोला था कि फ्रीजिंग ऑफ गेट बंद हो गई है बट फॉल का रिस्क बढ़ गया है। तो अब अगर एज एन इंजीनियर अगर मैं गेट फ्रीजिंग पे मैं पिच कर रहा हूँ, मैं गेट फ्रीजिंग पे मैन्यूस्क्रिप्ट लिख रहा हूँ एज एन एकेडमिक, तो 3-4 साल बाद मेरा धीरे धीरे वो ऐसे पिवट हो गया है डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पेशेंट। सो आई कैन डू गुड वर्क, good scientific work, good technological work, but slowly without knowing the ship has steered in the wrong direction. दूसरा, and I don't want it to be not in a combative sense, सिर्फ एक डिस्कशन के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक्सपर्टीज़ कैसे इसको किल कर देती है प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन के। अभी हमने सुना आशा वर्कर्स का काम, राइट। मैं इनोवेशन में यूपी में 2 साल लगा के आया था इससे पहले। आप कानपुर में जाओगे तो वहाँ पे एक ट्रायल चल रहा है कि आशा वर्कर RHD र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ की स्क्रीनिंग कैसे करती है। आप किसी और शहर में जाओगे तो वहाँ पे बच्चों के माल न्यूट्रिशन की स्क्रीनिंग हो रही है। धीरे धीरे हम 4 साल में आशा को डॉक्टर बनाने लग गए हैं। ये पायलट तक चल जाता है। ये सब पायलट प्रोग्राम में आप दिखा सकते हैं कि आशा इज़ केपेबल, बट स्केल का हम बाद में सोचते हैं। तो हम अच्छा काम पहले कर लेते हैं, फिर हम ढूंढते हैं कि इसकी प्राइस कैसे कम होगी, ये स्केल कैसे होगा। स्केल और प्राइस का हमें पहले सोचना होगा, क्योंकि जब आप सोल्यूशन बनाने चलते हैं आपके पास 1000 दिशाएं हैं जहाँ आप जा सकते हैं। तब अगर आप सोचेंगे कि मेरा स्केल का टारगेट क्या है, मैं किसकी हेल्प करना चाहता हूँ, उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, फिर आप अपने टेक्निकल सोल्यूशन में से बेल्स एंड विसल्स हटा देंगे। तो स्केल, अफोर्डेबिलिटी ये बाद में नहीं आता है, पहले पेशेंट की नीड आती है, फिर आपके स्केल, आपका एम्बिशन आता है, फिर टेक्नोलॉजी ईजीएस्ट पार्ट है उसका। वो लास्ट में, जब तक हम टेक्नोलॉजी को एंड में बनाएंगे टू सर्व अ रियल नीड, आई थिंक ट्रांसलेशन होगा। एंड दैट फिलोसफी कैन स्केल। Individual trainers, individual efforts won't scale across the country, in my opinion. Right, very well said, and I agree. You want to add to that your experience on ASHA workers, what Mohit is saying? आप क्या कहते हैं उसके बारे में? So what is an impact like through ASHA workers? मतलब कितने लोग आपसे जुड़ रहे हैं? Yes. And I also think कि ASHA workers थोड़ा overworked भी है। Yes. है ना? वो तो अभी सेंसस भी आने वाला है, पता नहीं उसमें क्या करेंगे लोग। तो उन्होंने बहुत परफेक्ट पॉइंट निकाला। एंड वी नो दैट आशा वर्कर्स आर ओवरबर्डन्ड, उन पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो हमने जो उनके साथ ट्रेनिंग्स किए हैं, हम उन पे भी, हम नहीं बना रहे हैं उनको डॉक्टर, हम एक टूल बना रहे हैं। नहीं, आई एम जस्ट, दिस इज ऐसे तो हम हर कोई डॉक्टर है इंडिया में, एवरीबडी इज अ डॉक्टर। कुछ ना कुछ सोल्यूशन देते रहते हैं, आप ये खा लीजिए ऐसा होगा, पूरा पिछले जन्म का पाप है तब ऐसा हो गया ना। तो है ही है, बट ऑन अ प्रैक्टिकल नोट दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, बिकॉज आप देखिए ना, मैं बार बार यही सोचता हूँ कि पार्किंसन सिर्फ बॉम्बे में होगा ऐसा तो है नहीं। तो वो तो हिंगोली में भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है। हाँ, तो क्या करेंगे लोग? मतलब हाउ व्हाट विल दे डू? इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब दैट्स अ फेट कि हो गया अब ऐसे ही। सो व्हाट मतलब you meet so many people who you call them as patient. Yes. So what do they do? I want you to, if there was a solution, अगर एक solution होना चाहिए कहीं भी हो आदमी, तो क्या इकोसिस्टम चाहिए हमको ताकि people can get a bare minimum therapy relief? Yes. It's a human right. अगर आपको right to health, right to life, Yes. it is driven from our constitution. तभी हमारे पास कम्युनिटी लेवल पे हॉस्पिटल होते हैं, Yes. सिविल हॉस्पिटल होते हैं। आपके पास यहाँ पे क्या तो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल भी है, ब्रिज कैंडी और क्या है, लीलावती, एंड देन देयर इज कोकिलाबेन। वहाँ आपके पास है तो आप जाइए, बट जिसके पास नहीं है तो PHC में, CHC में या सिविल हॉस्पिटल में ही आके, तो what ecosystem is required, and how much of this is also, Mohit, after Anjum will come to you and want to think about ki what ecosystem to, in terms of technology of, whether it is assistive technology or whether it is information, how do you destigmatize all this, between the both of you, and then I'll come to Kanikar Saab. Please. Yes.
So about just to complete that आशा वर्कर स्टेटमेंट, हम उनको कोशिश कर रहे हैं ओवरबर्डन ना करें, पर हम क्या कर रहे हैं, हम उनको एक टूल दे रहे हैं, सिंपल चेकलिस्ट दे रहे हैं कि ये पार्किंसंस के लक्षण हो सकते हैं। आप जब आपके रेगुलर स्क्रीनिंग कैंप्स ले रहे हैं, उस दरमियान अगर आपको कोई पेशेंट्स मिलते हैं तो तब आप हमसे मिलिए, हमसे जुड़िए और उनको हम तक पहुंचाइए। पीएचसी लेवल पे जब आशा वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो आगे उनके मेडिकल ऑफिसर्स तक जानकारी पहुंचा रहे हैं अपने पीडी चेकलिस्ट के द्वारा, और वो फिर डॉक्टर से डायग्नोसिस मिलने के बाद हमारे एनजीओ तक उन्हें पहुंचाते हैं, जहाँ पे हम थेरेपी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर मेडिसिन्स के बारे में हमने बात की, काफ़ी थेरेपी एक्सपेंसिव हो सकती है, तो जहाँ अंडर प्रिविलेज अगर कोई लोग हैं, उनको तो हम मेडिसिन पहुँचाने तक की कोशिश कर रहे हैं हमारे तरफ से, एनजीओ की तरफ से। और थेरेपी, क्योंकि पार्किंसंस इज़ नॉट ओनली मोटर डिसेबिलिटी, इट इज़ नॉन मोटर ऑल्सो, सो हम सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने की हमारे हमारे सेशंस के साथ मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से। जो आप बात कर रहे थे कि हिंगोली जैसे एरिया में, कोई रूरल एरिया में अगर पार्किंसंस पेशेंट्स है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे जो आउटरीच एरियाज़ है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें क्या करना चाहिए, ओके। तो हम हमारे तरफ से जो कर रहे हैं, और मे बी और हमारे साथ एसोसिएशन आए और भी दूसरे लोगों के साथ, तो इनके साथ तो हम आगे और बढ़ा सकते हैं कि यह हम कम्युनिटी लेवल पे, हमारे भी कम्युनिटी वर्कर्स हैं, जैसे हमारी आशा वर्कर्स हैं, हम वहाँ पर कम्युनिटी वर्कर्स को ट्रेन कर रहे हैं डिजिटली। यहाँ से मैं बैठ के जो डॉक्टर जैसे हमारे क्लिनिकल डायग्नोसिस कर पा रहे हैं, तो मैं यहाँ से उनको थेरेपी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैं स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की कोशिश नहीं कर रही हूँ, पर यहाँ पे मैं सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रही हूँ वाया द कम्युनिटी वर्कर हु इज़ देयर प्रेजेंट एट दैट पॉइंट। हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये कर सकते हैं और ग्रेटर एक्सटेंट पे कि उनको कम्युनिटी लेवल पे साथ में ला पाए, नॉट मे बी एवरी वे, नॉट मे बी रेगुलरली, बट वंस इन अ वाइल जब भी पॉसिबल है, तो दे हैव अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड आई एम नॉट अलोन, वो फील होगा उनको, ये हम कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक अगर हमारे साथ और ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ते हैं, इफ़ वी हैव मोर इनोवेटिव आइडियाज़, तो डेफिनेटली हम और इंटीरियर्स तक पहुँच सकेंगे। आप बोलना चाहेंगे? नहीं, सर का जो कहना था कि आशा वर्कर हम फेस कर रहे हैं अभी, कि आशा वर्कर, अभी हमारा पीसीएमसी में सर्वे चल रहा है, आशा वर्कर बहुत बिजी है और हायर लेवल के ऑफिसर्स सिर्फ मीटिंग करते हैं। ये दोनों में इतना डिफरेंस है, वो फील्ड पे है और ये मीटिंग कर रहे हैं, तो सर इसमें इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। वो इंटरवेंशन ऐसा है कि हम 0 to 6 के लिए अर्ली डिटेक्शन, अर्ली इंटरवेंशन का प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन जिनका डिटेक्शन हुआ है उनके इंटरवेंशन का प्रोग्राम नहीं चल रहा है बाय एज कॉज। तो क्या हम ऐसा मॉडल बना सकते हैं क्या कि जैसे DAIC बने हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, वैसे एज के बाद कोई अलग से सेंटर शुरू करना ज़रूरी है क्या, जिसमें बाय एज कॉज जितने हमारे पार्किंसंस है, डिमेंशिया है, तुम्हारा अल्जाइमर है, इसके लिए क्या कर सकते हैं क्या हम, ये देखना ज़रूरी है सर। मुझे लगता है कि साइमल्टेनियसली जितने छोटे बच्चे हमारे लिए ज़रूरी है देश के भवितव्य के लिए, उतने ही हमें हमारे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है 60-70 साल इस देश के लिए, उनको भी अपने को पूरी ज़िंदगी जीने का अधिकार देने का हमारा सामाजिक दायित्व है। दूसरी चीज़, इसमें जो स्टिग्मा है, इसके लिए भी कुछ करना होगा। स्टिग्मा एक बहुत बड़ा मायना रखता है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, वो एक्सेप्टेंस का भी एक कुछ यहाँ सारासार विचार होना चाहिए कि एक्सेप्टेंस के लिए हम क्या करें। इतना ज़रूर है कि हमने देखा है कि अपने ही ऑर्गेनाइजेशन अपने ही काम के लिए ज़्यादा काम आती है। हम जितने डिसेबिलिटी वाइज ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं,
जैसे हमारे पालक संघ है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। क्यों ना हम पार्किंसंस वालों का ही एक नेटवर्क, मैडम ने जैसा बोला है, एनसीपीडी के साथ जोड़ के हम एक पार्किंसंस का एक वर्टिकल, मैं ये चाहता हूँ सर, क्यों नहीं हम सजेस्ट करेंगे डिपार्टमेंट को कि तुम्हारे पास एक टेबल, ईच एंड एवरी डिसेबिलिटी का सेपरेट टेबल चाहिए, सेपरेट डेप्यूटी डायरेक्टर चाहिए, नीचे पूरा हायरार्की सेपरेट चाहिए। क्यों? तो संख्या बड़ी है। हमारे पास एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी को फोकस करते हैं, लेकिन जो बाकी के हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं सजेस्ट कर सकते कंसर्न डिपार्टमेंट को? आरोग्य विभाग में तो उनके टेबल है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाला है उनके पास नहीं है। तो 21 डिसेबिलिटीज़ को 21 जो भी आपको कहना है, डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, तो वो मशीनरी खड़ी रहेगी। देखो, गवर्नमेंट के सिवा कुछ नहीं होता है। आप एनजीओ लेवल पे छोटा छोटा कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट साथ में लेंगे तो ही उसको बड़ा आयाम आ सकता है। मोहित, सर आपने जो इकोसिस्टम का क्वेश्चन पूछा, आंसर नहीं है मेरे पास सर, डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि सर मॉरल क्वेश्चन है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि सतारा के एक वर्कर का हेल्थ केयर एक्सेस साउथ बॉम्बे के एक पेशेंट के हेल्थ केयर एक्सेस के बराबर होना चाहिए कि नहीं, और वो हो सकता है कि नहीं, वो बहुत एक बड़ा अर्बन पुअर को देख ले, स्लम में रह रहा है, तो उसका भी तो होना चाहिए। हाँ जी, एक्सेस होना चाहिए सर। इसमें मेरे हिसाब से है कि आप एक सल्यूशन बनाकर ये ढूंढे कि अब मैं इसका एक्सेस पाथवे कैसे क्रिएट करूँ, वो बहुत एक मुश्किल काम है। मेरा ये मानना है पहले हमें बहुत जूम आउट करके देखना पड़ेगा। अगर पार्किंसन जैसे डिजीज़ का हम एग्जांपल लें, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जिसके भी आपको कारण समझ नहीं आए हैं, जिसके सोल्यूशन हमारे पास समझ नहीं आए हैं, उसका इकोसिस्टम बनाना है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर हम सोल्यूशन की बात करें, एवरीथिंग हैज़ टू कम अंडर वन रूफ। हमने ये ऑटिज़म में होते हुए देखा है कि आपका जो थेरेपिस्ट है, आपका जो डिवाइस चलाने वाले लोग हैं, आपके जो डायग्नोसिस हैं, आपके जो डाइटिशियन है, अगर वो सब एक रूफ के अंदर हैं, एक सेंटर के अंदर है, देन देयर इज़ सम प्रोबेबिलिटी। द रीज़न आई से दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी की एक बहुत बड़ी बात आ जाती है। जब एक प्रॉब्लम मल्टीफैक्टोरियल है, जिसकी साइंस प्रूवन नहीं है और जिसके सोल्यूशंस बहुत सारे हैं, मेरा सोल्यूशन अगर एज अ टेक्निकल सोल्यूशन काम नहीं करेगा, सिर्फ 30% लोगों की हेल्प करेगा, मैं फिर भी कंपनी चला सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो 30% लोग मिल जाएंगे मेरे सोल्यूशन का वर्ड ऑफ माउथ करने के लिए, क्योंकि मेरी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गई है कि सर मैं ये डिवाइस बनाता हूँ, इसकी 30% एफिकेसी आप ट्राई कर लो, आपके लिए चलेगा तो ठीक है। वैसे कोई और डाइटिशियन अपना क्लिनिक वैसे चला रहे हैं। आई थिंक अगर हम एक वर्क फ्लो बनाए जिसमें हम Parkinson's patient is important, my solution is not important, my program in the PHC CHC is not important. वो मेंटालिटी करनी है और फिर देन गवर्नमेंट फॉलोज। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू एडवोकेसी विदाउट हैविंग प्रूफ। वाई वुड आई एडवोकेट फॉर अ 30% प्रूफ टू वर्क इन ऑल ऑफ माई सेंटर्स? हम कभी अपने बॉस को नहीं पिच कर सकते ना, सर इसका वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंटेशन कर देते, 30% के टाइम काम करता है, तो वाई आर वी एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम हेल्थ केयर इनोवेटर्स? बिकॉज दिस इज मल्टीफैक्टोरियल, डिफरेंट पीपल हैव टू कम अंडर अ ब्रिज, एंड किसी को डिवाइस लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। आई थिंक दैट इज वन सोल्यूशन, आई डोंट थिंक दैट्स द ओनली सोल्यूशन, बट इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। यू नो, आई गेट अ फीलिंग, नो, मतलब जब भी हमने पार्किंसन वर्ड सुना है तो पहला दिमाग में आता है कि कोई उम्र, मतलब एल्डरली है, समझ, एंड दिस इज नेचुरल कि होता ही है, मतलब। और अभी इस पैनल में बात करने से ऐसा लग रहा है कि कोई बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करना है हमको, यू ट्राई टू फिक्स दैट पर्सन। आई थिंक वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। Dis-ease, but when you're uncomfortable, you're not at ease, that is why you said dis-ease, right? Disease. And disability, कि certain things you cannot do and that's it. But disability का जो definition है अभी के कानून में, is a social definition. It says that the environment is creating disability, it's not the person impairment. And in that, I think मुझे लगता है कि सिर्फ इलाज नहीं, सिर्फ थेरेपी नहीं, आई थिंक व्हेन यू डोंट कम अंडर द RPWD Act protection or the protection of the Constitution, you miss out on education, you miss out on employment, you miss out on accessibility,
एंड मेनी अदर राइट्स द विच यू हैव, क्योंकि आप सिर्फ आपकी फोकस आ जाती है कि मुझे पार्किंसन है या मेरे फैमिली में किसी को पार्किंसन है, इसका ट्रीटमेंट, इसका थेरेपी, इसका गेट ट्रेनिंग एंड सो ऑन. बट आई थिंक जैसे कानिका साहब आप कह रहे हैं ना कि द आइडिया टू ब्रिंग पार्किंसन इज अ लार्जर डिस्कोर्स ऑफ हेल्थ, ऑफ वेलनेस. और किसी को 2-3 लोग आए थे जो ऑनलाइन, दे कंटिन्यू टू वर्क, they continue to take decision in the family, they continue to participate in many things. There was a lady who was speaking, हम concert जाते हैं, कहीं जाते हैं. So that is the idea that आप की कोई भी disability हो, you continue to stay in touch with your life. It doesn't stop. Like if you have a health condition. So ऐसा करने के लिए I think one of the biggest thing which is picking up in India from last 5-6 years is about assistive technology, and that's what Amay has been doing, and many of such assistive technology is being promoted by NCP, DP, and the ecosystem बन रहा है धीरे-धीरे कि क्या technology या device use करके that you are able to overcome the barrier so that you are able to have a quality of life, participate in employment, job market, education, family life and so on. ऐसा तो आपका तो एडिप के साथ बहुत काम रहा है. एंड सो डू यू, क्या एक्सपीरियंस है मतलब इन लार्जली इन महाराष्ट्र, और जैसे भी एक्सपीरियंस क्या है इसका? डू यू थिंक ऐसा सोल्यूशन हो सकता है जो जिस स्टेट पे अभी एडिप है, या कैन इट स्केल टू अ लेवल? और ऑल्सो आप थेरेपी पार्ट भी देखिए, DDRC का आपका काम है, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? और ऑल्सो इफ आई डोंट नो हु कैन आंसर दिस, do you think that people with Parkinson are not looking at themselves as a person with disability? Why that? This is an open question for everybody. But आप पहले सर एडिप और असिस्टिव. बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि एडिप में क्या है. एडिप स्कीम जो है एक्चुअली जो दिव्यांगजन है उनके लिए बनाई गई है. पार्किंसंस का अगर दिव्यांगजन में रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप एडिप के लिए पात्र है. अगर आपके पास UDID नहीं है फिर भी आपको असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत है, आपको असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत है, फिर भी आप पात्र नहीं है. लेकिन एक ऑप्शन ज़रूर है कि उन्होंने वयोश्री नाम की स्कीम निकाली है. वयोश्री में हम बैठते हैं तो हमें 2 स्कोप है उसमें कि एडिप में हम सपोर्ट के लिए, मुझे नहीं, अभी मैंने कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों को एडिप का बेनिफिट दिया है और 1-to-1 स्क्रीनिंग भी किए हैं, जिसमें पार्किंसंस बोल के किसका रजिस्ट्रेशन नहीं आया है एज पर माई नॉलेज. अभी तो अर्जुन नाम का एक पोर्टल है, उसके ऊपर आपको अगर आपके पास UDID है तो आप डाल सकते हैं, या फिर आप सीनियर सिटीजन बोल के वयोश्री नाम का जो स्कीम है उसमें ऐड कर सकते हैं जो असिस्टिव डिवाइसेस. लेकिन एलिम्को जैसी जो गवर्नमेंट की कंपनी है, नए नए इनोवेशंस आए हैं, लेकिन पार्किंसंस के लिए जैसे अभी किसी ने कह रहे थे कि हमें पैर के लिए तो बनाया है, लेकिन हाथ के लिए या फिर यहाँ के मान जिसको बोलते हैं हम गर्दन के लिए कुछ बनाया है या नहीं बनाया है. कुछ सर्जिकल बेल्ट है जो वयोश्री में है, सर्जिकल बेल्ट, लेकिन सर इसके ऊपर हमें थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए. क्यों? तो अगर नहीं है तो मुझे लगता है आप दिल्ली में ही हैं, आप अगर एलिम्को को एक लेटर लिखते हैं तो कुछ न कुछ ज़रूर हो जाएगा. क्यों? तो पहले सर्जिकल आइटम नहीं थे, हमने उनको रेज़ किया था कि आप सर्जिकल आइटम वयोश्री में ऐड करें. एक ये चीज़ ज़रूरी. दूसरी थेरेपी वाली जो बात आपने कही थी, हमें 2 चीज़ें करनी होगी कि ज़्यादातर 0 to 6 के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का ज़्यादा मायने रखता है, बराबर है ना मैडम? और सीनियर सिटीजन्स को पार्किंसंस हो या फिर स्ट्रोक हो या फिर बाकी सब हो, हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है. तो एग्जिस्टिंग जो थेरेपी सेंटर्स है स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें
DDRC के भी है, DIC के भी है और कारपोरेशंस के भी है कहीं अच्छे, बस सब तरफ नहीं है, कम जगह है, लेकिन जहाँ है वहाँ पे तो बेनिफिट मिलना चाहिए। उसके लिए एक हम ज़रूर कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के साथ एक पत्र व्यवहार करके कि यहाँ पे जो पार्किंसंस वाले दिव्यांग भाई है हमारे, उनको वहाँ पे उसका बेनिफिट मिले। राइट, थैंक यू। आई थिंक बहुत सवाल और क्वेश्चंस हमारे यहाँ है, बट आई थिंक फॉर द पॉसिटी ऑफ टाइम मुझे वी हैव टू स्टॉप हेयर। आई डोंट नो इफ देयर इज टाइम टू टेक एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी। None, then we will take any questions that you have. Please meet the panelist offline. मेरा तो यही कहना है कि people with Parkinson's, if you identify themselves, you must come under the disability groups and demand for the rights that you have. Right. Thank you so much, everyone, for your time, and the panelists. Thank you.